Good morning, kids. I hope all you are enjoying at your home and be healthy. Okay, now it's time to study. And welcome again in our English class. In previous classes, we learned so many alphabet. Okay, now this is the time to identification. अब हम अक्षर की पहचान करेंगे कि हमें कौन कौन सा पिक्चर है ये. ओके, आप बताओगे फर्स्ट. इट्स योर एग्जाम. ठीक है. यस, दिस इज योर फर्स्ट पिक्चर. व्हाट इज दिस? थिंक एंड टेल. Ma'am, Take I your time. think this is a flag. Yes, it's F for flag. Flag means flag start which alphabet? F. F. F for Fish. F for fish and F for flag also. How can we write F? First we draw one standing line like this and two sleeping line. It's F. F for flower. F for flag. F for fish. Okay. Now this is your second picture. Tasty, tasty. Ma'am, ice cream. Yes. Yummy and tasty. It's I for Ice ice cream. cream. I for another picture. You Mm, can guess. ice. Ice. I for ice Ice. cream. It's also very cold. I for ink pot also. Ink pot होती है शाही की दवात. Okay. But you know very well in ice cream. So, ma'am draw one ice cream for you. Okay. Now come. How can we write I? I for ice cream. First we draw one standing line. Okay. Then one sleeping line and one another sleeping line here. It's I for ice cream. We learn I for ice cream, I for ice, and I for Ink pot. Okay, very good. It's E for ma'am tell you it has long trunk. Ma'am, it is horse. No, it not horse. It has two tusk also. यहाँ पर इसके two ऐसे बड़े बड़े दांत भी होते हैं. Ma'am, I got it. It is elephant. Yes, it's only elephant. It's elephant. Elephant has also two long, big ears. बड़े बड़े कान होते हैं हाथी के बड़े बड़े कान. एलिफेंट को हम कैसे पहचानते हैं? उसके लॉन्ग बिग बिग ईयर्स से. ये लॉन्ग उसकी Trunk. ट्रंक से और ये उसके टू होते हैं टस्क दांत. तो ये क्या है हमारा? ई फॉर Elephant. एलिफेंट की राइडिंग में बहुत मजा आता है बच्चों. कभी हम जाते हैं ना जैसे किसी फोर्ट वगैरह को देखने, किले वगैरह को देखने, वहाँ पे एलिफेंट की राइडिंग होती है. कभी करके देखना. यहाँ एलिफेंट के ऊपर टमी के ऊपर बैठ के वो हमको दूर तक लेके जाता है. बहुत मजा आता है. ओके, तो अब हम लिखेंगे ये क्या है? ई फॉर एलिफेंट. वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, another sleeping line, and it's E for Elephant. Now tell me another picture. E for elephant, you know na. Another picture. E for Ma'am, E for yes. In previous class, I think ma'am draw E for egg. yes. E for egg, like this. What is this? E for egg. Anda. E for
egg. And one more. You tell. No. Think. Take your own time. Eraser. Yes. Ma'am, give you hint na? What is this? Eraser. इरेजर. हम कुछ भी लिखते हैं तो उसको रब करने के क्या काम आता है? Eraser. Eraser. Okay. Then E for elephant, E for egg, and E for Eraser. eraser. Ma'am, what elephant eat? Elephant eat. Ma'am, tell you? Yes. Elephant's favorite fruit. Favorite one? Mango? No, no. It's vegetarian. It can eat leaves, but it like sugar cane. गन्ना बहुत फेवरेट होता है बना इसका खाता है वो बनाना मैंगो भी आप दोगे वो भी खा लेगा लेकिन जो उसका सबसे फेवरेट है वो शुगर केन हमारा गन्ना इतना लंबा लंबा अच्छा हम हिंदी में पढ़ते हैं ई से ईक ई से ईक. वो ईक होती है गन्ना वो भी एलिफेंट का फेवरेट मैम पर ई से तो इमली होती है. नो छोटी ई से जब हम यहाँ ऐसे लिखते हैं बच्चों ऐसे ई ये है मेरी छोटी ई से इमली लेकिन बड़ी जब इमली बड़ी होगी उसके सिर पे हम ऐसे एक ताज क्राउन पहनाएंगे तो ये हो जाएगी मेरी बड़ी ई से होती है ईक. आपका शुगर केन गन्ना अभी मैम ने आपको हिंदी में ई से इमली और ई से ईक नहीं सिखाई जब मैम आपको सिखाएगी तो मैम इनमें डिफरेंस भी बताएगी आपको Okay, ma'am. क्लियर नाउ कम टू दिस पिक्चर व्हाट इज दिस This is a horse. yes this is horse H for Horse. how can we write horse one standing line little far one another standing line and we match both these two standing line with a sleeping line its letter H. H for Horse. another picture guess another picture for H Mm, our lovely house. मैम said ना stay home stay safe घर पर रहो और स्वस्थ और सुरक्षित रहो तो एच फॉर आवर लवली House. अच्छा लगता है ना हमको हमारा घर अच्छा एक चीज और होती है एच पर हम सुबह सुबह उठते हैं वो उसकी आवाज आती है और हैन का एग भी होता है Yes, ma'am. Hen. हैन और हैन की साउंड कैसी होती है बच्चों कुकड़ुक्कू. हाँ, कुकड़ू सुबह सुबह बहुत पहले जमाने में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी बच्चों आप कभी अपने दादा दादी नाना नानी से पूछना तो मुर्गे की आवाज से सब उठ जाते थे मुर्गा बहुत जल्दी सुबह सुबह उठता है और कुकड़ू करता है उसकी आवाज बहुत तेज होती है उससे उठते थे सब उसके बाद आविष्कार हुआ इन्वेंशन हुआ क्लॉक का घड़ी का ओके Okay, ma'am. नाउ कम टू दिस पिक्चर व्हाट इज दिस किंग ऑफ द जंगल It is lion. नो बेटा pronounce it clearly it's lion not lion what we call now it's Lion. what we call Lion. in previous we call it lion okay now we call it Lion. lion it's king of the jungle how can we write one standing line and one sleeping line it's L for Lion. no Lion. yes pronounce clearly it's lion
अच्छा, another picture for L. Leg. Yes, L for our leg. And one another picture, it start from alphabet L. L for, think about tree. Hmm. ट्री पे क्या होता है? L for, Leaf. वेरी गुड, L for लीफ. ऐसे होते हैं बेटा ट्री पे पत्ते. L for लीफ ऑल्सो, पत्ता. इसको भी क्या कहते हैं हम? L. तो आज हमने क्या सीखा? अल्फाबेट का आइडेंटिफिकेशन. हम एक से ज्यादा पिक्चर भी लर्न करेंगे, हमारी मेमोरी इंक्रीज होगी, हमको और ज्यादा होगा. जरूरी नहीं है ना कि आई फॉर आइसक्रीम ही हो. आई फॉर बहुत सारी पिक्चर होती है, तो 2 2 3 3 पिक्चर लर्न करो बेटा. अब हम ग्रोन अप बेबी हो गए, बड़े हो गए ना, तो अपनी मेमोरी इंक्रीज करो और पिक्चर सिखा दो. नेक्स्ट टाइम मैम आपको मैचिंग देगी, तो मैम दूसरी पिक्चर बनाएगी. इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैम एफ फॉर फ्लैग बनाए. ओके, एफ फॉर फिश भी लर्न करना, एफ फॉर फ्लैग भी लर्न करना. ओके, आई फॉर आइसक्रीम भी होता है. ऐसे जो पिक्चर बनता है वो आई फॉर आइस होता है. आई फॉर आइस भी है. ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग. ओके, तो आप इनको भी साथ साथ लर्न करना. अच्छा, आपके पास बुक्स आ चुकी हैं. अगर बुक्स अवेलेबल नहीं है तो बच्चों प्लीज स्कूल में आप बुक्स लेकर आओ, उसकी रीडिंग भी स्टार्ट करो. अल्फाबेट की रीडिंग स्टार्ट करो. उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं, हम उनकी भी रीडिंग करेंगे. नेक्स्ट टाइम मैम आपको बुक्स दिखाएगी. नेक्स्ट लेक्चर में मैम आपको बुक दिखाएगी और उस बुक से हम रीडिंग भी करेंगे, कैसे रीडिंग करना है. ओके, तब तक आप अपनी बुक्स अवेलेबल कर लो. मम्मा को बोलो मम्मा स्कूल से बुक्स लेके आओ. ठीक है, दिस इज योर टुडेज होमवर्क. डू दिस इन योर फेयर नोटबुक. जो आप स्कूल के लिए नोटबुक बना रहे हो बच्चों, उसी में ये वर्क करो. बी क्लियर and send your homework before 6 p.m. o'clock. Okay, till then, bye.